محبوب تشریف فرمائیں آگے کو بھائی وہ کہہ رہے تھے رضا مشیت پہ، میں کیا چوپی پلی ہے بھائی ہمیں کہتے بول کے میں ہی نہ پڑھیا جاؤں، تو رضا تے گفتگو کرے گا مصباحی، تیری اتنی اوقات ہو گئی خواہشوں کے غلام، تو رضا پہ گفتگو کرے گا؟ اسی کیٹیگری میں ہو کہ میں خود دکھ رو رہا ہوں حضرت، میں حضرت جی جو ہے نا میں دکھ رو رہا ہوں حضرت، کام خراب ہو گئے اپنی نمازیں۔ ہاں بس آخری بات اور بات ختم، بس ایک کام بس جس کی اس وقت معاشرے کو اشد ضرورت ہے، وہ ہے اخلاص، وہ ہے اخلاص کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کام تھوڑا ہوئے لیکن ہوئے ستھرا، کام بہت بڑا ہو لیکن ہو ستھرا، نہ ہو اخلاص نہ تو وہ تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اس حوالے سے تو علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، قبلہ طاہر بھائی بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یعنی پیچھے بڑے نام بیٹھے ہیں، آندہ دیکھ کے کر لیندہ، میری بات نصیبی ہے، میں نہیں ناموں سے آگاہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حساب ہی 3 بندوں سے شروع ہوگا، پہلا عالم، 3 عالم، مجاہد، سخی، اور تینوں حضرت جی دکھاوے کی وجہ سے مارے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے تو نے عمل میرے لیے کیا ہی نہیں تھا، تیرا تو مقصود تھا، واہ واہ وہ ہو چکی، چل تو پھر ہم کس کھاتے؟ نہیں، تھوڑا ہو ستھرا ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہائے 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 قربان، یہ تو صوفی حضرت، یہ تو صوفی حضرت جی، سانوں کتھے حضرت جی منہ نہ متھا تے جن پڑھوں لتھا حضرت، جو ہمیں ہماری جانے بلا صوفی ہوتا کیا ہے حضرت؟ ہم تو نفس کے غلام ہیں، ہم تو خواہشات کے غلام ہیں۔ حضرت جنید بغدادی روزے سے تھے، دل کر پڑا آج انجیر نہ روزہ کھولی، آپ نے اپنے مرید کو، شاگرد کو پیسے دیے، جا انجیر لے کے آ، وہ انجیر لے کے آیا۔ جب روزے کے افطار کا وقت آیا نا، آپ نے منہ میں انجیر رکھی اور پھر باہر پھینک دی اور رو پڑے۔ مرید نے عرض کی حضور پیسے بھی لال، انجیر بھی لال، والتین والزیتون، والتین والزیتون، اللہ قسم کھا رہا ہے انجیر کی۔ محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا تو وہ انجیر ہے، روزے سے ہیں، نکال کے پھینک دی۔ فرمایا کئی سالوں سے میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے کو، آج جب میں نے انجیر منہ میں رکھی نا تو اندر سے نفس بول پڑا پھر جنید اینے سالہ بعد میں جیتی گیا وانا۔ یہ تو صوفی ہے، یہ تھے صوفی۔ ہاں جی، وہ جبہ پہننا تو بندہ صوفی نہیں نہ ہو جاتا، جبہ پہننے سے تو نہیں بندہ صوفی ہو جاتا، جب بندہ سر پہ پورا تھان رکھ لے تو کیا صوفی ہو جاتا ہے؟ نہ صوفی، صوفی جو ہے صوفی ہوں نا، صوفی کا اپنا جہاں ہوتا ہے، صوفی کی اپنی دنیا ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو صوفی ہے۔ کیونکہ میں اس سے آگے نہیں بولوں گا کیونکہ میں ماڑا ماں، میرے نال گن مین بھی کوئی نہیں ہے، کیمرہ لگا ہے۔ تو بلے شاہ بھی جان چھڑا گیا، وہ کہندا سچ آکھاں دے پامبڑ بلدے، بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں بھی سر دواں جا کے وچ۔ بلے شاہ صاحب جان چڑھا گئے، وہ کہنے نے سچ آکھاں دے پامبڑ بلدے، میں بھی سر دیاں جا کے وچ۔ نہیں بھائی میں ماڑا آدمی ہیں، لیکن دل بڑا دکھا ہوا ہے اس وقت، دل بڑا دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے یار، یہ ہم تصوف کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں، یہ ہم سلوک کے ساتھ یہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ میاں صاحب تو تب رو پڑے، آپ فرماتے ہیں تھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوڑ ہیں۔ 100 سال پہلے میاں صاحب کہہ کے اب کیا تماشا لگا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بس چپ پلی۔ میں تو بس یہی کہتا ہوں، اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے، اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ جن کی ڈیوٹی تھی راستہ دکھانا، وہی کھڑے ہو کے راستہ بھلانے میں لگ گئے۔ جن کا کام تھا راستہ دکھانا، جن کا کام تھا ہاتھ پکڑ کے مدینہ لے جانا، وہی راستہ بھٹکانے لگ پڑے۔ ہاں بھائی ہماری یہ ڈیوٹی تھی۔ اقبال نے ضرب نہیں کی، ٹائٹل اقبال نے دیا خدا بندوں سے، خدا اور میں نہیں۔ اللہ کا شکر ہے تقریباً 4 سلسلے جو ایک بریلی شریف سے خلافت ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ احمد کو سمجھے کہ میں شاید میں خود بھی اسی کیٹیگری میں ہو کہ میں خود دکھ رو رہا ہوں حضرت، میں حضرت جی جو ہے نا میں دکھ رو رہا ہوں حضرت کہ کام خراب ہو گیا حضرت۔ اقبال رو کے کہتا ہے ناخوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے،
क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। हमारी ड्यूटी थी तुम्हें रास्ता दिखाना, लेकिन तुम्हें रब का रास्ता दिखाना, खुद ही हम तुम्हारा रब बन गए हैं। बस अल्लाह रहम ही करे। इखलास हजरत जुनैद बगदादी अर्ज की हजरत आप दर्स दे, मुख्तसर करूंगा। अर्ज की हजरत आपने इखलास कहाँ से सीखा? फरमाया जुनैद ने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। अल्लाह बंदा इतना बड़ा नाम और बंदा के जी मैं नाई को सीखा, लेकिन मैंने कहा ना जिवें असी उच्चा होने तो रहे हैं कभी को होया नहीं है, नहीं होंगे कभी कोई उच्चा वो ही होगा जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल करेंगे। और मैं नाई से सीखा था। अर्ज की हजरत वो कैसे? फरमाया फक्र का दौर था, जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बाल ही कटवा ले। फरमाते बड़े बालों के साथ अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने बाल देख के फरमाया जुनैद जाओ पहले बाल कटवाओ। कहते पैसे तो थे नहीं, लेकिन मैंने कहा पीरो मुर्शिद ने आख्या उनको राह निकल ही आएगा। फरमाते मैं नाई की दुकान पे आ गया, कुर्सी पे बिठा के किसी के बाल काट रहा था। फरमाते मैं खड़ा हो गया, उसने देखा, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम कहा। फरमाते मैंने कहा तेरी दुकान है, तू पैसे लेके बाल काटता है, तेरा घर दुकान से चलता है, फ्री तो तू काटेगा नहीं, पैसे लेके काटेगा। मेरे पास पैसे है कोई नहीं, चल आज मेरे अल्लाह के लिए काट दे हैं। फरमाते ये सुनना था, दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा, दुकान पे ले गया। और ये भी नहीं किया जैसे हम करते हैं, भाई तेरे अल्लाह वास्ते कटने हूँ वेले होकर कटांगा, पहले उन्होंने कटांगा जिन्होंने को पैसे ले नहीं है, जिन्होंने को लैने ने, तू बह के डीक, क्योंकि तेरे अल्लाह वास्ते जो कटने ने तेरे साथ तू बाद च कटे जा। हाँ हाँ कूड़ा मान तो छोटा गोश्त जो अल्लाह के नाम से देना, तो चने वाले चौल है। वाह तू तो अल्लाह को कुड़मा जिहा भी नहीं समझे है, खुआ कुड़मा भी कि चने वाले चौल। मैं तेन वेखा बड़े पाटे खान, अल्लाह की कसम है दिल दुखता देख देख के। हो क्या लगा रहा है जी? कुड़ामान ते जनाब देसी कुकड़, कुड़ामान ते छोटा गोश्त। जब बारी आए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तो चने वाले चौल। वाह वाह वारी वारी जावा उथे हजरत वो सारा कुछ दे के भी कहते हैं जा दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वाह इस्माइल अलैहि सलाम महबूब तशरीफ फरमाए। आगे को भाई वो कह रहे थे रजा मशीयत पे, मैं क्या चोपी पली है भाई, हमें कितने बोल के मैं ही ना फड़िया जावा। तू रजा ते गुफ्तगू करेगा मिसबाई, तेरी इतनी औकात हो गई, खाशों के गुलाम तू रजा पे गुफ्तगू करेगा। महबूब तशरीफ फरमाए, एक जानिब हजरत इब्राहीम है, एक जानिब हजरत हुसैन है, इमाम हुसैन। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम पेश किया, साथ अर्ज करते हैं महबूब अल्लाह फरमा रहे हैं एक दे दो एक रख लो, एक दे दो एक। महबूब ने दोनों को देखा, इब्राहीम हुसैन इब्राहीम हुसैन इब्राहीम हुसैन, एक लखते जिगर है, एक लखते जिगर का लखते जिगर है जी। फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा, उनके जिगर का टुकड़ा है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। फरमाया जिब्राइल जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, इब्राहीम दे दिए, हुसैन रख लिए। तुझे क्या पता बंदगी कहते किसको है? ये तो गल्लां कल होणगियां, तू खाते खुलने ने मियाँ जी, कुड़मा ली छोटा गोल साढ़े नी चने वाले चौल। ये तो बातें हम तो चुप कर रहे थे, मैं नहीं बोलता उड़ा तो बाप फट पड़ा इधर जी, हम सब कुछ देखते हैं चुप करके इधर हो क्या रहा है इधर जी, हो क्या रहा है, ये तमाशे क्या लगे हुए हैं। कासिम अली असगर अली अकबर, हाय हाय जहाँ दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक ना हुआ। हमेशा पुत्र कोशिश करना अल्लाह और अल्लाह के रसूल वाला पलड़ा कुड़मा नालू भारी रहे, ना पकाई, लेकिन कम अज कम जो पकाई तो फिर कुड़मा नालू थोड़ा उत्ते जाके पकाएंगे। हम देख रहे हैं चुप कर, सिर्फ देख देख के रोना आता है, हो क्या रहा है, हो क्या तमाशा क्या लगा हुआ। और फरमाते हैं ले गया मुझे और दुकान पे ले जाके ये भी नहीं किया कि तुसी बवो अजदे कटन दिया, कम से कम ऐसे काट लवा ना। फरमाते जिसके काट रहा था उसको भी उठा दिया, मुझे बिठाया, मेरा सर चूमा, बाल काटने शुरू कर दिए। अब रोता जाए, बाल काटता जाए और सर कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूं। फरमाते काटता रहा, रोता रहा, काटता रहा, रोता रहा,
मैं भी नीचे बैठा कह रहा था छाप तो देने को कुछ नहीं, कभी अल्लाह ने वक्त लाया तो जरूर बदला दूंगा। आप फरमाते वक्त गुजरता गया, अबू बकर शिबली, अबू बकर वास्ती, अमर बिन उस्मान मक्की जैसे शुयूख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए। आप फरमाते खलीफा वक्त मुरीद हो गया मेरा, अल्लाह ने फकीरी में अमीरी दी। आप फरमाते हैं मैंने एक दिन एक थैली बनाई, दिरहम डाले, दिनार डाले, लेकिन उसकी दुकान पे चला गया, बूढ़ा हो चुका था। आप फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। आप फरमाते मैंने कहा पहचाना? उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। आप फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उसने कहा हाँ याद है। आप फरमाते मैंने थैली आगे करके ले फिर बाल काटने का बदला। वो आगे से कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े सूफी हो गए हैं, आप तो बहुत बड़े शेख हो गए हैं, आप तो पीरे तरीकत बन गए हैं, अरे भी तो आपको तो तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है, आपको तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। आप फरमाते हैं मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो वो आप फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो आगे से कहता है जुनैद जेड़ा काम अल्लाह वास्ते करिए फिर लोगों को दा बदला नहीं लईदा है, जेड़ा काम अल्लाह वास्ते करिए लोगों को। हम अभी लोगों में फंसे हुए हैं, हम अभी लोगों में फंसे हुए हैं। दुआ करो निकल जाइए। और मैं कहता हूँ को एक ही काम में एक भी मिल गया ना खाते में जड़ा सिर हो दे ली होया कला ही बड़ा है, अल्लाह की कसम है, एक मिल गया ना एक वो कला ही बड़ा है जी। कोशिश करियो पुत्र वो लभियो जड़ा हो दे ली होए। अब ठीक है आप अपने सिलसिले को जारी रखिए, मैंने सियालकोट जाना और सुबह फिर मैंने ये जी अच्छा ताहिर भाई ना प्यार बड़ा है, आहो हीरे की कदर सारे तो नहीं ना होंगी है। और मैनू अपने सारे पिछू भाई मेरे लिए को जो मर्जी भी कवे मुच्छा इंज ने जड़ियाँ ने ना वो कच्चियाँ गल्लां सुनांदा है, जो मर्जी भी आखण सानू प्यार ही है ना, क्योंकि इन्हीं के दम कदम से बाहर हैं ना भाई। मुझे कदर है इन सब की हजरत जी। ठीक है ये इल्मी लोग हैं, मेरी गलतियाँ हैं, मैं कब कहूँगा मेरी गलतियाँ नहीं हैं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा प्यार है क्योंकि इन्हीं के दम कदम से बाहर हैं। कोई जनाब फैक्ट्री आनर कोई नहीं, ये ही ने सारे जेडे सरगी उठ के कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सानू कदर है जनाब, तानू ना होए, तानू ना होए, सानू कदर है जाने दी पुत्र। तुम्हें क्या पता ये लोग कौन है? महबूब फरमाते हैं मेरे वारिस हैं, ये मेरे वारिस हैं सारे। तुमने नहीं कदर की कोई भी, तुमने कदर नहीं की, हमें कदर है। महबूब फरमाते हैं एक जिन्हें एना वेख्या हो जी उन्हें मैनू वेख्या, आए और बेहयाओ जिनको देखना रसूलुल्लाह को देखना उनकी ग़ीबतें करते हो, उनके पीछे नमाज पढ़ के उनकी ग़ीबत करते हो। मेरे मुआशरे को हो क्या गया? अगर कोई गलती है उसका जवाब तुमसे नहीं लिया जाएगा, ये देंगे अपनी गलती का जवाब। तू तो अदब कर रहा है, हुजूर का नायब है, नबी अलैहि सलाम के मिंबर और मुसल्ले पे बैठने वाला है, उसकी गलती का तुझे नहीं पूछा जाएगा, तुझे नहीं पूछा जाएगा इसमें ये गलती क्यों थी, वो देगा अपनी गलती का जवाब। तूने अदब करना है, हुजूर के मिंबर पे बैठते अदब करो। सुनियो जितनी सुन्नियों ने उलमा की बेकदरी की है ना, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं उसको किस तरह बयां करूँ। चलियो तुसी नाथां लैंड कूदरां दे बाछड़े ते शेखुल हदीस तुसी 70 दे मार चढ़े, तुमने इतनी बेकदरी की हज़रत उलमा की, सुन्नियों ने इतनी बेकदरी की, इतनी बेकदरी। मैं फिर बजाते खुद पीर होने के बावजूद कहता हूँ पीरां दा वो साहबजादा जिन्हों नली भी नहीं मूंझनी सही तरीके ने, मुँह पे दाढ़ी कोई नहीं, उसका भी अदब हो रहा है। और हजरत जिसके सीने में बुखारी है, जिसके सीने में जनाब मुस्लिम है, जिसके सीने में हिदाया है, जिसके सीने में नूरुल इदा है, जिसके सीने में बेजावी है, जिसने नह मीर पढ़ रखी है, जो अब बाबू शर्फ का जानने वाला है, उसकी तुमने इतनी बेकदरी की। मुझे कदर है। तो आज बड़ी आजमाइश थी, आना ना वो से एक मामला बन गया ताहिर भाई को बताया तो, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार साढ़े ताहिर नूं गल कोई ना करे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दोनों को सुरखरू किया। अल्लाह मेरे मसलक के जितने उलमा हैं सब की खैर फरमाए। हमें उलमा का अदब करनी, भाई अगर कोई मामला है वो जवाब देंगे, आपसे नहीं लिया जाएगा उनकी गलती का जवाब। आप अदब करो बेटा। वो हुजूर के मिंबर और मुसल्ले पे बैठते हैं, हुजूर के मिंबर और मुसल्ले की इज़्ज़त को बहाल करो यार, हुजूर के मिंबर और मुसल्ले की इज़्ज़त को बहाल करो। वह कहते वैसे तुम बड़ा कुछ हो लेकिन अमली तौर पे कुछ भी नहीं है, बहाल करो इसको हज़रत। हाँ जी इसको बहाल करो हज़रत जी। हाँ अगर इज्जत होती तो फिर 8000 तनख्वाह क्यों होती? अगर इज्जत होती तो 8000 तनख्वाह क्यों होती? मैं हज़रत जी वापडा में, मैं वापडा का खतीब हूँ, आपको का
ہمارے ایسی صاحب کی ماشاءاللہ 1 لاکھ تے 70,000 تنہا ہے، ایسی ہے نا. تے مولوی نے ایسی ساتھ جناب GLI گاڑی ملی ہوئی ہے. تے کام نے بڑا کچھ، لیکن ہم نے اللہ رحم کرے. بس کیا پھر دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. وما علینا الا البلاغ.